Hello students, welcome to our classes. So today we are going to start the new chapter, which is chapter number 8, congruence of triangles and inequalities in triangle. Okay, so this is very important topic, and today we will talk about the some basic conditions and some basic concepts of the congruence of triangles. ठीक है, so first we discuss what is congruent figures. What is congruent figures? What is congruent figures? So two figures which has same shape and size are known as the congruent figures. Okay, so how can we understand this definition? So what we will say that the congruent figures क्या होती हैं? दो ऐसी फिगर जिनका शेप और साइज सेम हो, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर. इट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर congruent figure because the shape and size of these two triangles are equal. The shape and size of these two triangles are equal, so these two figures are known as congruent figure. So we understand now what are congruent figures. Congruent figures are the figures when the two figures have same shape and same size. This is not so much important. The next topic which we are going to start in few minutes, which is important, which is congruent triangles. So we come to the important topic, congruent triangles. Okay, congruent triangles. Now what are congruent triangles? Two triangles are congruent if and only if one of them can made to superpose on the other. Now what is the meaning of this definition? I have drawn here two triangles. I have drawn here two triangles. See, okay, now if we put these both triangles one over the other, okay, ठीक है, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को एक के ऊपर एक रखेंगे, ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे को क्लियरली कवर कर लेंगे? इट मीन्स अगर हमने इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखा तो क्या ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेंगे? तो उसको कहते हैं सुपरपोज. सुपरपोज का मीनिंग होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाना, एक दूसरे को कवर कर लेना. जैसे कि एक ये स्क्वायर है, इसके ऊपर जस्ट ऐसा ही एक स्क्वायर रख दिया तो उसको बोलेंगे सुपरपोज. तो यहाँ पहले आप सुपरपोज का मीनिंग समझिए. सुपरपोज का मीनिंग ये होता है एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाना. तो अगर हम एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल सुपरपोज करते हैं और वो क्लियरली अच्छे से एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर लेते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो ये होती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन. अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कंडीशन क्या होती हैं? ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कंडीशन, देयर आर 5 कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है, फर्स्ट इज S S S, second is A S A, third will be S A S, fourth A A S, now fifth will be R H S. Okay, so what are these 5 conditions? This conditions full form
साइड 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 एंगल साइड एंगल side angle side angle side angle right hand side. Okay, so there are 5 conditions of the congruent triangle, which is SSS, ASA, AAS, SAS और RHS. ठीक है, अब ये होती क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं SSS. SSS का मतलब क्या हो गया, when we draw two triangles and if all the 3 sides of one triangle is equal to the all the 3 sides of the another triangle, then the both of that two triangles are said to have congruent to each other by the property of SSS, and we represent the congruent by the symbol this. Okay, as you can see, two horizontal lines. ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंबल. दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए. यू कैन नोट इट डाउन एंड बिकॉज आई विल रब इट. ओके, सो ये हो गया सिंबल. अब एक करके इन प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, तो SSS क्लियर हो गई नाम से. सेकंड जो है हमारी SSS के बाद SAS या ASA, कोई भी ले लीजिए, मैं SAS ले रहा हूँ, SAS. तो देखिएगा ये स्टूडेंट्स, ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया. दिस इज़ आवर नेक्स्ट ट्राइंगल, है ना. तो साइड एंगल साइड का मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड. इट मीन्स मान के चलते हैं कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है. जब हम बात कर रहे हैं साइड एंगल साइड की, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इट मीन्स जो सीक्वेंस आएगा ट्राइंगल के अंदर, वो साइड एंगल साइड का ही आएगा. मैं ये नहीं कह रहा कि यही साइड इक्वल होगी या यही एंगल इक्वल होगा. कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लीजिए, लेकिन साइड एंगल साइड हो सकता है. ये साइड हो जाए, ये एंगल हो जाए, तो और ये साइड हो जाए, तो यहाँ भी साइड एंगल साइड. ये साइड हो जाए, ये एंगल हो जाए, ये वाली साइड हो जाए, तो यहाँ भी साइड एंगल साइड. तो इस तरीके से. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है हमसे कि अगर हम एक साइड बराबर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, when if we equal one side, it means that let us consider this side is equal to this side, then these two sides are equal. This side is equal to this side, then these two sides are equal. ठीक है, so SAS, it means that angle is in between the two sides. So as we all know, these two sides we considered as equal. So in between these two sides there is one angle which is this. So side angle side. ठीक है, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड. ओके, बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एंगल साइड एंगल. नाउ इफ़ वी ड्रॉ टू ट्राइंगल, है ना, बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इजी हैं, इसमें भी कुछ नहीं है. एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल उसी कॉन्फ़िगरेशन में इक्वल होना चाहिए. यहाँ हम बात कर रहे हैं एंगल साइड एंगल की, तो एंगल एंगल इक्वल, साइड और एंगल. हो सकता है ये हो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, बस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होना चाहिए. ठीक है, तो ये सब इक्वल हैं, ये सब इजी हैं. नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब जो इनसे डिफरेंट है, वो है RHS. तो RHS का मतलब ये होता है, जब हम बात करते हैं RHS की, तो RHS का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, बल्कि RHS का मतलब ये होता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, सपोज़ ये दो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं. नो डाउट RHS सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ होगा, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ होने की उसकी एक पॉसिबिलिटी है. वो पॉसिबिलिटी ये है कि पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए.
ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपका नहीं होगा तो RHS नहीं लग सकता। अब इसमें RHS कैसे लगेगा? पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये वाली साइड, सबसे पहली बात तो हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए। हाइपोटेनियस ये दोनों हो गई, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, और इन दोनों में से कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए। या तो ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए या ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है हमारी RHS की। ओके, है ना। हाइपोटेनियस तो इक्वल होनी ही चाहिए। हाइपोटेनियस के साथ जो दूसरी साइड एक और इक्वल होनी है, वो बेस भी इक्वल हो सकता है या परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ये वाली साइड हाइपोटेनियस तो होगी, हो सकता है ये दोनों इक्वल हों या ये दोनों इक्वल हों। इट मीन्स कंडीशन ये है, पहली कंडीशन RHS में 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कोई भी एक साइड होनी चाहिए, वेदर इट इज़ परपेंडिकुलर एंड वेदर इट इज़ बेस। मतलब हाइपोटेनियस और 90 डिग्री के साथ कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तब RHS कंडीशन सॉल्व होगी। पहली कंडीशन 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन परपेंडिकुलर या बेस, दोनों में से कोई एक और साइड। हाइपोटेनियस के साथ 3 साइड होती हैं हर ट्राइंगल में, हाइपोटेनियस के साथ कोई एक और साइड इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो ये थी बात हमारी कॉन्ग्रुएंसी की। नाउ इसमें थ्योरम भी दे रखी है, एज वी talk in the previous lecture, as we discussed in the previous lecture, that those students who wants that we can also learn proving of the theorem, they can send me। और गाइज इंस्टाग्राम, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर जाकर आप हर चैप्टर की अलग अलग वर्कशीट्स हमने प्रोवाइड की हुई हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, आप उन्हें सॉल्व करिए, है ना। आई होप सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छी वर्कशीट्स हमने तैयार की हैं और हर चैप्टर की एज़ यूजुअल आपको वर्कशीट इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिलती रहेंगी। सो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ से वर्कशीट सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर DM कीजिए। ओके गाइस, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स। Equiangular triangles. Okay, so what are equiangular triangle? If two triangles have 3 angles of the one correspondingly equal to 3 angles of the other, है ना। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी डेफिनेशन है। 2 ट्राइंगल बनाएंगे हम, ठीक है, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल, साइड की बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर, जैसा कि नेम से ही क्लियर है, नेम में ही उसके एंगल आ रहा है, तो all the 3 angles of one triangle are equal to the all the 3 angles of the another triangle. So these two triangles are known as equiangular triangle. Equiangular का मतलब ये है कि ट्राइंगल के सारे एंगल एक, मतलब दोनों ट्राइंगल के सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। सो दीज आर इक्विएंगुलर ट्राइंगल। ओके, सो ये थे बेसिक कंसेप्ट ट्राइंगल के। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंदी भी है, इसमें हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट डोंट वरी, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और एज़ यूजुअल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं, जो कि जिसके चांस होते हैं, जिन क्वेश्चंस के चांस होते हैं आने के एग्ज़ाम में, उन्हें हम वर्कशीट में प्रोवाइड करेंगे। डोंट वरी, अच्छे से आपको क्लियर होगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट की बात करी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।